السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے۔ تو گائز یہ لاسٹ وارننگ ہے، اگر آج بھی آپ نے اس ایپیسوڈ پر 1.5 کے ویوز اور 100 کمنٹس نہ کیے تو ایپیسوڈ کل نہیں آئے گی۔ میں نے تین آپ لوگوں کا انتظار کیا مگر رسپانس ٹل 0 ہے، تو پھر اب ایپیسوڈ ایک ویک کے گیپ سے ہی آئے گی اگر آپ کا ایسا ہی رسپانس رہا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نازلی کی آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں، وہ دونوں اور کچھ کہے بغیر وہاں سے جا چکے تھے۔ باہر نکلتے ہی ان کے تاثرات کرخت سے کرخت ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی صاحب، یہ کیا کیا آپ نے؟ حویلی اس کل کی آئی لڑکی کے نام کرنے جا رہے ہیں جو ہماری گردن پر پہلے ہی تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ شمس صاحب نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ تو یہ جیسے بھول ہی بیٹھے تھے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، ان کی سگی اولاد تھی، مگر جب خون سفید ہو جائے اور پیسہ دین ایمان بن جائے تو پھر کہاں کے رشتے کیسے رشتے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اتنی بڑی قربانی ایسے ہی دے دی؟ میرے بیٹے کی جان داؤں پر لگی ہے اس کمزاد کی وجہ سے، اور اب وہ ہمیں ہمارے ہی گھر سے بے دخل کرنے پر ہے۔ مگر یہ اس کی سوچ ہے کہ وہ اپنے رنگ حویلی میں دکھا پائے گی، اسے ایسے جگہ لا کر ماریں گے کہ نہ ہوش رہے گا نہ پینے کو پانی ملے گا، کیونکہ اب وہ ہماری قید میں آنے والی ہے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچتے آنکھوں میں قہر لیے بولے تھے، اور در حقیقت نازلی ان کے جلال کو آواز دے چکی تھی، جو اب تب ہی شانت ہونا تھا جب وہ اسے سبق سکھا پاتے۔ مگر پھر بھی بھائی صاحب حویلی، شمس صاحب کو سب سے زیادہ حویلی کی فکر تھی۔ وہ کشمکش کے زیر اثر بولے، فکر مت کرو شمس، کبھی کبھار شکار کرنے کے لیے 2-3 قدم شکاری کو پیچھے ہی لینے پڑتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں عیار تاثر لے کر بولے تو شمس صاحب مطمئن ہوئے تھے۔ ان کی شیطانی سوچ سمجھ کر اب یقیناً وہ نازلی کو بری طرح ہرانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مگر اس بات کا خیال رہے شمس کے حویلی کا چھپا راز اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی اس کی ہلکی سی بھی سرگوشی اس کے کانوں تک پہنچے، کیونکہ نازلی کرمانی کے کان بہت باریک ہیں جس سے ہلکی سی بھی سرگوشی مخفی نہیں رہتی۔ آخر وکیل جو ٹھہری تفتیش تو اس کی فطرت میں ہوگی ہی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے بولی تو شمس صاحب نے سر خم کیا تھا جیسے وہ اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ آخر ایسا کون سا راز مدفن تھا اس حویلی میں جسے وہ نازلی کی پہنچ سے دور رکھنا چاہتے تھے؟ کون سی پہیلی تھی؟ آخر ایسا کون سا گناہ تھا جس پر انہوں نے پردہ ڈالا ہوا تھا؟ دوسری طرف عائشہ بیگم نازلی کو کڑی نظروں سے گور رہی تھیں، جس پر اس کی نظروں کا کوئی خاص اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں، کیوں تم دوبارہ اس جہنم میں جانا چاہتی ہو جس نے ہماری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی؟ کیوں تم اس ظالم باپ کے پاس جانا چاہتی ہو جس نے آج تک تمہاری پرواہ نہیں کی اور آج بھی پتہ نہیں کس گھنونے مقصد کے تحت آیا ہے؟ وہ آنکھوں میں رنج و تکلیف کے باعث آتے آنسوؤں کو بمشکل ضبط کرتے بولی تو گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، اگر میرے اس جہنم میں جلنے سے کسی بے قصور جان کو انصاف ملتا ہے ماما، تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ اس کی کہیں گہری بات نے جیسے عائشہ بیگم کے لبوں کو کفل لگا دیا تھا۔ ان کی بیٹی انصاف کی راہ پر چل نکلی تھی جیسا وہ چاہتی تھیں، پھر بھی اب بھلا وہ اس کی راہ میں رکاوٹ کیسے بن سکتی تھیں؟ مگر جانتے بوجھتے وہ اپنی بیٹی کو مگرمچھوں کے درمیان کیسے چھوڑ دیتی جو پہلے ہی اس کے خون کے اور اس کی دولت کے پیاسے تھے؟ وہ لب کاٹ کر سوچنے لگیں۔ انہی سوچوں میں ڈوبے دیکھ وہ اپنے جگہ سے اٹھتی ان کے پاس آئی اور ان کے گرد باہیں پھیلائیں۔
आप फ़िक्र मत करें मामा, हमेशा की तरह इस बार भी जीत बुराई की नहीं बल्कि सच्चाई की होगी। मुझे को सज़ा ज़रूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। वो उनके माथे पर लत रखती, उनकी नम आँखें साफ़ करती बोली तो उन्होंने फ़ख्र से अपनी बेटी को देखा जो आज उनके सामने आज कामयाब औरत की तरह खड़ी थी जिसे तोड़ना किसी आम इंसान के बस की बात ना थी। सुबह का सूरज तलू हुआ तो नाज़ली तैयार होकर नीचे आई। वो आयशा बेगम के साथ नाश्ता कर रही थी जब किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। उन दोनों ने एक दूसरे को अजनबी से देखा, भला इतनी सुबह 8 बजे कौन आ सकता था। मुलाजमा भी 10 बजे के बाद आती थी। फिर बाहर कौन था? मामा आप नाश्ता करें, मैं देखती हूँ। वो जूस का घूंट भरती दरवाज़ा खोलने गई। इतनी दौलत होने के बावजूद वो ज़्यादा मुलाजिम नहीं रखती थी क्योंकि वो ज़्यादातर अपने घर का काम खुद करना पसंद करती थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, शेरदिल बलोच को दरवाजे में इस्तादा देख उसका मूड बुरी तरह ख़राब हुआ था। तुम यहाँ? वो बेजारी से बोली। सदके सुबह सुबह दीदार यार हो गया, अब तो जान भी चले जाए तो गम ना होगा। वो दिल पर हाथ रखते बोला। तो नाज़नीन ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा जो उसको भी बाकी लड़कियों की तरह बहलाने की कोशिशों में था। तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा पूरा दिन ज़रूर बर्बाद हो गया है मिस्टर वडेरे। वो दांत पीसती बोली। दिल तो चाहा था उसके मुंह पर दरवाज़ा मार दे, मगर सब्र का घूंट भर कर रह गई। आखिर उसके खिलाफ वो सबूत जो चाहिए थे। उफ, गुस्सा भी कातिलाना है, सीधा दिल पर ठा करके लगता है। उसके मुंह पर आती लिट पीछे करने लगा तो वह ज़ोर से उसका हाथ थप्पड़ मारकर झटक गई। डोंट यू डेयर, जुर्रत भी मत करना अपने इन गलीज़ हाथों से मुझे छूने की। पता नहीं कितने लोगों का खून है इन हाथों पर। मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना शेरदिल बलोच, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। वो कहर भरी निगाहें उस पर डालते बोली तो शेरदिल बलोच की एक बीट मिस हुई थी। कोई गुस्से में इतना भी कातिलाना कैसे लग सकता है? दिल पर लगती है ये बात, महबूब हो और जालिम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? वो दिल थामता बोला तब उसकी बकवास पर दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने दरवाजे में हाथ रखा था जिस पर दरवाज़ा उसके हाथ पर बहुत ज़ोर से लगा था। मगर मजाल है जो उस शख्स के चेहरे पर शिकन भी आई हो। नाज़ली ने उस साइको की हरकत पर झटके से दरवाज़ा छोड़ा। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या लेने आए हो? या क्या भूल गए तुम्हें इस हाल में किसने पहुंचाया? नहीं, अगर कहते हो तो याद दिला देती हूँ। वो आजिज़-आती बोली तो वो उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। हवेली वाले आपके इंतज़ार में पलकें बिछाए बैठे हैं और खादिम आपको ले जाने आया है। वो सर खम करते बोला तो वो सर नफ़रत से झटक कर रह गई। इन चिकनी-चुपड़ी बातों से और कितनी लड़कियों को वर्गलाया है तुमने? क्या उन्हें भी अपनी इन ज़हरीली बातों का झांसा दिया था? वो गर्दन तिरछी की हकारत से बोली तो शेरदिल के लबों का कोना ऊपर उठा था मुस्कुराहट की सूरत में। वैसे आपस की बात है, उनके लिए तो एक आंख का इशारा ही काफ़ी है और वो यूं चुटकियों में मेरे बिस्तर की जीनत बन जाती हैं। वो खबासत से कहका लगाते बोला। मगर पहले किसी टेढ़ी खीर से पाला नहीं पड़ा ना। पहले किसी टेढ़ी खीर से पाला नहीं पड़ा ना, मगर अब लगता है खुद को सुधारना पड़ेगा। उसे फरेबी निगाहों से नहारते बोला तो उसकी आंखों में किसी लपक थी कि नाज़ली को बेसाख्ता उससे घिन आई तो वो अंदर की तरफ संभाल लेने बढ़ी। वो भी बिना इजाज़त पीछे ही आया था। अंदर बैठकर खाना खाती आयशा बेगम का हाथ नाज़ली के पीछे आते शेरदिल बलूच को देखते हुए रुका और यही नहीं, उनके चेहरे पर साफ नागवारी छलकी थी। अस्सलाम वालेकुम चची जान, बहुत देर बाद आपको देखा है, मगर आप तो अभी वैसी की वैसी ही हैं। उसने गर्दन तिरछी करते हुए कहा तो आयशा बेगम ने उसे घूर कर देखा था
तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मुझे इस रिश्ते से मंसूब करना छोड़ दो। ना ही मैं तुम्हारी चाची हूँ और अब ना ही मुझसे ऐसी कोई तवक्का रखना। वो दरिश्त लहजे में बोली थी। मैं अब समझा कि मोहतरमा का गुस्सा किस पर गया है। उसने उनके सामने सोफे पर टिकते हुए कहा तो वो गुस्से का घूंट भर कर रह गई। यकीनन ये उसे ले जाने के लिए आया था। मेरी बेटी तुम लोगों के पास जा तो रही है, मगर एक बात याद रखना शेर बलोच, अगर गलती से भी उस पर एक खराश भी आई तो तुम लोगों की जड़ें काट दूंगी। अपना इंतकाम तो मैंने छोड़ दिया था, मगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने वालों को मैं कब्र तक लेकर जाऊंगी। आयशा बेगम ने शेरदिल बलोच की आंखों में यकटक देखते हुए कहा तो उसके चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट आई थी। मेरी दस्तरस में पनाह लिए हुए शख्स को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो फिर कोई आपकी बेटी को भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मगर ये सब सिर्फ उस पर मुनहसर है कि वो खुद को आके कुएं में मत धकेले। वो पस मंजिल उनको धमकी देना नहीं भूला था। साफ जाहिर था कि वो उन्हें कह रहा था कि अपनी बेटी को समझा कर भेजे कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। वरना अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। अभी वो उनसे बात कर ही रहा था कि नाज़ली अपना बैग लेकर नीचे उतरी। सफ़ेद शलवार कमीज़ में सर पर सफ़ेद ही दुपट्टा टिकाए वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। शेरदिल बलोच उसको देखता हुआ गहरी सांस भरता उठा था। सोई हुई मुस्कुराहट फिर से जाग उठी थी इस हसीना को देखकर। उसकी आंखों में चलते दीप नाज़ली को एक आंख ना भाए थे। दूसरों की आंखों से खुशियों के जुगनू नोच लेने वाला आखिर खुद खुश होने का हक कैसे रखता था। अच्छा मामा, मैं चलती हूँ। आयशा बेगम के आगे आती बोली तो उन्होंने उसे कस के गले लगाया था। जीत कर आना। वो उसके कान में सरगोशी करती बोली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने छप दिखलाई थी और उसने भी उन्हें ज़ोर से गले लगाया। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। वो उसका माथा चूमते उसे रवाना करती बोली। उसके घर के बाहर शेरदिल की गाड़ियां कतार में खड़ी थी। सियासतदान का बेटा था, गद्दी का अगला जानशीन, भला प्रोटोकॉल में कैसे ना आता था भी तो जागीरदार वडेरा। आगे बढ़कर उसने नाजली के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और दूसरे हाथ से बड़ी शान से आंखों पर सनग्लासेस टिकाए थे। शेरदिल बलोच, आखिर तुम्हें क्यों कर लगा कि मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठ कर जाऊंगी? अच्छी चाल थी तुम्हारे बाप की। वो अच्छी तरह जानते हैं कि मीडिया चटपटी खबरों की तलाश में है और यकीनन तुम लोग ये खबर लीक करने वाले हो कि मुझे तुम्हारे साथ गाड़ी में कहीं जाते देखा गया है। लेकिन अफसोस, मुझ पर ये हथकंडे नहीं चलेंगे। वो अपनी गाड़ी में उसकी नज़रों के सामने बैठती हुई बोली और उसे तमस्खुर से देखा था। उस घमंडी वडेरे ने पहली बार किसी लड़की के लिए दरवाज़ा खोला था और वो उसे खाली हाथ लौटा गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? मगर नाज़ली को देखकर साफ अंदाज़ा हो गया था कि वो अर्श से फ़र्श पर पटकने की माहिर थी। अगर मुझे अब जी भर कर देख लिया हो तो चलें? तुम्हारे पास हाथ खासा वक्त होगा ज़ाया करने को, मगर मेरा वक्त बहुत कीमती है। मैं अपनी गाड़ी में तुम्हारी गाड़ी को फ़ॉलो करूँगी। वो सनग्लासेस एक उँगली से नीचे करती उसे आगाह करती बोली तो वो एकदम कहका लगा पड़ा। मानना पड़ेगा, हम जैसे शातिर लोगों को भी काबू करने का फ़न सिर्फ आप में है मैडम जी। वो उसकी गाड़ी के पास आते विंडो में दोनों हाथ टिकाता अंदर झांकते उस पर झुक कर बोला तो वो एकदम पीछे हुई थी।
और फ़ौरन गाड़ी का शीशा ऊपर किया, जिस पर वो उसे चील जैसी नज़रों से देखता लबों पर फ़क्त खामोशी सजाए अपनी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि वो जान चुका था कि एडवोकेट नाज़ली करमानी उसके हाथों से होने वाली नहीं थी। गाड़ी में बैठते ही दस्तार बलोच की कॉल आई थी। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ, निकल आए तुम लोग? मुबारक अंदाज में बोले। निकल आए, मगर आपकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। वो आपका मकसद पहले ही जान गई थी। तभी अपनी गाड़ी में आ रही है, उसकी बात पर वो दांत पीसते रह गए। आप फिक्र मत करें, शेरदिल बलोच उस पर अपने नाम की ऐसी मोहर लगाएगा कि हिरनी चाह कर भी फड़फड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। वो खबासत से कहका लगाते बैक मिरर से उसकी गाड़ी को देखते बोला, तो वो भी हंस दिए थे अपने बेटे पर। उन्हें अंधा यकीन था जो एक दिन ज़रूर उन्हें ले डूबता। अब आएगा मज़ा, दुश्मन टक्कर का ना हो तो दिल नहीं लगता, अगर 2 कदम आगे हो तो मुकाबले का मज़ा तो बाला कर देता है। वो आंखों में मायने खेजी लिए नाजली को काबू करने के मंसूबे बनाने लगा। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, वो सिसक कर बोली। मोहब्बत करने और उस पर कायम रहने में बहुत फ़र्क होता है लड़की। अपना जिस्म तो तुम मुझे दे नहीं सकती, बात करती हूँ मोहब्बत की। वो लड़का तनफ़ुर से उसका मुंह झटकते बोला, ये तुम क्या कह रहे हो हारून? निकाह के बाद मेरे जिस्म और जान के मालिक तुम ही तो होगे, तो फिर अभी हराम रिश्ता क्यों बनाना चाहते हो? वो तड़प कर फरियाद करते बोली, क्योंकि मुझे तुम्हें पाना है, तुम्हारी रूह में हायल होना है, तुम पर अपनी मोहर लगानी है, तुम्हारी रग रग में अपना लम्स छोड़ना है, और वो भी आज रात ही। वो उस पर ज़ालिमाना इंकशाफ करते बोला तो हैरत से ठठरती उसे तकने लगी। अगर अपनी मोहब्बत साबित करना चाहती हो तो आज रात मेरे फ्लैट पर आ जाना, तभी मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए। और अगर तुमने गलती से भी कदम वापस लेने का सोचा तो भूल जाना कि कोई आशिक भी था तुम्हारा जो तुम पर फना हो गया। वो उसके लबों के नज़दीक तरीन आते उसके रस भरे लबों पर सरगोशी करते बोला। उसकी जान उसके लबों में अटका चुका था कि वो अपनी सांसें तक रोक गई थी। क्या उसे मोहब्बत पर अपनी इज्जत का सौदा कर लेना चाहिए? आखिर फिर शादी भी तो हो ही जाएगी। ये सोच आते ही उसका बदन टूटने लगा था। एपिसोड होती है यहाँ ख़त्म नाज़रीन। तो आज के एपिसोड पे जल्दी से 1.5 के व्यूज़ मुकम्मल कर दें और कमेंट्स भी पूरे कर दें, ताकि फिर कल एपिसोड इसी टाइम पर दोबारा आ जाए। अगर आप लोगों ने कमेंट्स का टारगेट और व्यूज़ का टारगेट पूरा कर दिया तो इंशाल्लाह इसी टाइम पर कल एपिसोड आएगी, वरना एक दिन के गैप से आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।